Hello everyone, this is Preeti Chabra and I welcome you all to Learning Never Stops. Today's topic is Avogadro's law from the chapter Mole Concept and Stoichiometry. Now what does this law state? In the last video we had seen Gay-Lussac's law, right? जितने भी gas laws हैं, one thing which has to be kept in mind कि ये जितने भी laws हैं, they have to be stated or they are stated under some similar conditions of pressure and temperature. This law states that equal volumes of all the gases, जितनी भी gases हैं, say hydrogen, nitrogen, oxygen, carbon dioxide, okay, और ammonia, जितनी भी gases हैं, अगर उन gases को equal volumes में लिया जाए, ठीक है, तो उन सारी gases के they have equal number of molecules. Clear? This is very simple. Equal number of molecules. Say for example, if I take 1 liter of hydrogen and if suppose I say it has n number of molecules if it has, then 1 liter of carbon dioxide will also have the same n number of molecules. 1 liter of oxygen will also have these many number of molecules. इसको इस साइड से भी समझने की कोशिश करते हैं. Under these conditions, अगर आप किसी भी गैस के वॉल्यूम्स इक्वल सेम रखते हो तो उन सारी गैसेस के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम होंगे. अदर वे राउंड इफ यू टेक कि आप किसी भी गैस के अगर कुछ सर्टेन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लेते हो, से फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ 10 to the power 5, फॉर एग्जांपल मैं बोल रही हूँ 10 to the power 5 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं से हाइड्रोजन के, एंड इफ आई से कि मैंने कार्बन डाइऑक्साइड के भी 10 to the power 5 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मेरे पास हैं, ऑक्सीजन के भी मेरे पास सपोज 10 to the power 5 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं. इफ आई टेल यू दिस वे, then this means कि if 10 to the power 5 number of hydrogen molecules, they are occupying 1 liter of volume, then 10 to the power 5 molecules of carbon dioxide will also occupy 1 liter of the volume. 10 to the power 5 molecules of oxygen will also occupy the same volume. Clear? So this is very simple. Now this law explains Gay-Lussac's law. This law also predicts the atomicity of gases. It also gives the molecular formula of gases. Now if I take hydrogen molecule plus chlorine molecule, what will I get? 2 molecules of HCl gas. According to Gay-Lussac, there we talk about the volumes. So 1 volume of hydrogen plus 1 volume of chlorine will give how many? 2 volumes of HCl gas, right? Now Avogadro law states that since this is 1 volume, suppose it has n number of molecules, okay, n molecules it has. अब ये 1 volume है, इसके पास n molecules हैं, ये भी 1 volume है, तो इसके पास भी n molecules ही होंगे, number of molecules, right? Now this is 2 volume, 1 volume में n molecules, तो 2 volume में double the molecules, right? तो it will have 2n number of molecules. Clear? Simple. He states that equal volume contains equal, that means they can be stated as proportional. Equal volumes contains equal number of molecules. If you double this will also get doubled. If you make it half, you will get half the number of molecules. So this is very important. जितने भी numericals हैं वो इसी पे based है. Say suppose for example I say कि मैंने आपको एक 50 liter gas कोई भी दिया, suppose hydrogen, and I say कि it has suppose x number of molecules, okay, and I ask you to find 200 liters of carbon dioxide में कितने number of molecules है, और इफ़ आई से 100 लीटर ऑफ ऑक्सीजन में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, तो इट्स वेरी सिंपल. 50 में x है तो 100 में दिस इज डबल ऑफ 50 एंड दिस इज 4 टाइम्स ऑफ 50. सो आप इसको 4 टाइम्स कर दोगे, 4x मॉलिक्यूल्स होंगे, और इसको 50 का डबल, 50 में x है तो 100 में डबल, 2x number of molecules. Now Avogadro's law predicts
Atomicity of gases. Atomicity क्या है? This is you must be knowing by this time. Suppose I take hydrogen, if I take chlorine, then suppose I take phosphorus और sulfur. ठीक है, कैसे क्या दिख रहा है इसमें atomicity? 1 molecule of hydrogen में कितने atoms हैं हाइड्रोजन के? 2 atoms of hydrogen combine to form 1 molecule of hydrogen. तो हाइड्रोजन की atomicity हो गई 2. That means जितने number of atoms मिलकर molecule बनाते हैं वो उसकी atomicity हो गई. यहाँ पे भी 2 atoms of chlorine they combine to form 1 molecule of chlorine. तो chlorine की atomicity हो गई 2. phosphorus में 4 atoms of phosphorus they combine to form 1 molecule. So इसकी 4 हो गई atomicity and इसकी 8 like that. ठीक है. Now ये डायटोमिक हो गए, ये टेट्राटोमिक हो गया, ये ऑक्टाटोमिक, मोनोटोमिक भी होते हैं, जैसे सपोज नियॉन. ओके, ये जो इनर्ट गैसेस होते हैं दे आर मोनोटोमिक. सो ये जो एटॉमिसिटी है दिस could be predicted by Avogadro's law. How? We'll see that. हाँ, one more thing here. ये सारे you can see these are same elements. ठीक है, सेम एलिमेंट के एटम्स हैं. जैसे हाइड्रोजन ही 2 हाइड्रोजन ने मिलकर कंबाइन करके हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनाया है. ये क्लोरीन तो these are called होमो atomic molecules. Suppose I take carbon dioxide. तो यहाँ पे 2 different elements है ना, कार्बन एंड ऑक्सीजन. So such type of molecules are heteroatomic molecules. So होमोएटॉमिक हो या हेटेरोटॉमिक हो, एटॉमिसिटी प्रेडिक्ट करने के लिए व्हाट एवोगाड्रो स्टेटेड, या दिस लॉ हाउ इट वाज यूज्ड. सपोज अगेन आई टेक द सेम एग्जांपल, अगेन आई टेक हाइड्रोजन एंड क्लोरीन टू गिव 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl. राइट, अब इजी है बट थोड़ा सा ध्यान से सुनो. नाउ वी ऑल नो दैट मॉलिक्यूल्स कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू एटम्स, है ना. मॉलिक्यूल्स को हम जब ब्रेक डाउन करेंगे तो हमें एटम्स मिलेंगे, लेकिन एटम्स दे कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड. सो अगर हमारे पास हाइड्रोजन है, क्लोरीन है और हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है, सपोज वी टेक n नंबर ऑफ, सपोज 1 मॉलिक्यूल, ओके, 1 मॉलिक्यूल ऑफ दिस हाइड्रोजन गैस. तो 1 वॉल्यूम में सपोज 1 मॉलिक्यूल है, तो अगेन दिस इज ऑल्सो 1 मॉलिक्यूल, 1 वॉल्यूम, तो इट विल हैव 1 मॉलिक्यूल. ठीक है, दिस हैज 2 वॉल्यूम्स, सो दिस हैज 2 मॉलिक्यूल्स. ओके, इफ आई टेक 1 मॉलिक्यूल ऑफ दिस एलिमेंट, ठीक है, एंड अब मैं इसे अगर डिवाइड करती हूँ तो ऑब्वियसली मॉलिक्यूल को मैं डिवाइड कर सकती हूँ, विल गेट एटम आउट ऑफ इट. तो अगर मैं इसको हाफ कर दूँ, ठीक है, हाफ अगर मैं इसका करती हूँ, हाफ मॉलिक्यूल, ठीक है, इफ दिस इज हाफ द मॉलिक्यूल then this is also half the molecule. तो इसका हाफ कितना होगा, ये 2 था तो ये हो गया 1 मॉलिक्यूल. ठीक है, 1 मॉलिक्यूल हो गया. नाउ हाफ मॉलिक्यूल मीन्स हाउ मेनी एटम्स, वी नो एटॉमिसिटी के हिसाब से वी नो कि यहाँ पे अगर मैं इसको हाफ मॉलिक्यूल करती हूँ तो आई विल गेट 1 एटम. बट अगर मुझे नहीं पता कि इसमें कितने एटम्स हैं, अगर मैं इस हाफ का भी हाफ करूँ, ठीक है, मुझे नहीं पता कि इसमें कितने एटम्स हैं, मैं बस मॉलिक्यूल्स को हाफ कर रही हूँ. अगर मैं उस हाफ का भी हाफ करूँ तो क्या वो फर्दर और डिविजिबल होगा? नो, बिकॉज इस हाफ से मुझे क्या मिल गया, सिंगल एटम मिल गया, विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड. एम आई क्लियर? दैट मीन्स ये हाफ मॉलिक्यूल 1 एटम है जो अब फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता. अगर ये हाफ मॉलिक्यूल 1 एटम है, दैट मीन्स 1 मॉलिक्यूल ज़रूर 2 एटम्स होगा. क्लियर? उल्टा समझो, हाफ मॉलिक्यूल मैंने किया, उसके बाद फर्दर डिवाइड नहीं हो रहा, दैट मीन्स ये हाफ मॉलिक्यूल 1 एटम है, इसलिए वो और डिवाइड नहीं हो रहा, एटम्स को और फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते. अब ये हाफ मॉलिक्यूल अगर 1 एटम है, दैट मीन्स जब वो 1 मॉलिक्यूल था तो एटम्स डबल होंगे, यानी 2 एटम्स होंगे. दैट मीन्स हाइड्रोजन की एटॉमिसिटी होगी 2. Likewise, half molecule chlorine could not be further divided. That means उसका 1 atom है. 1 atom half molecule में है तो 1 molecule में 2 atoms. That means इसकी atomicity है 2. Right? So इस तरह से Avogadro's law predictions किए गए atomicity of different gases. Now, this law determines the molecular formula of a gas. ठीक है? Suppose nitrogen plus hydrogen will give ammonia. ठीक है, अगर गेलियोजैक्स लॉ के हिसाब से देखें तो 1 वॉल्यूम प्लस 3 वॉल्यूम्स ऑफ हाइड्रोजन विल गिव 2 वॉल्यूम्स ऑफ अमोनिया. राइट? ठीक है,
इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिराइव करना है, डिटरमाइन करना है एवोगाड्रोस लॉ के अकॉर्डिंग। सिंस आई हैव टू डिटरमाइन द फॉर्मूला ऑफ NH3, ठीक है, फॉर्मूला गैस का मुझे इसका डिटरमाइन करना है, तो आई विल ब्रिंग इट दिस साइड। सपोज आई राइट 2NH3 दिस साइड, सो आई विल गेट 1 volume of nitrogen and I'll get 3 volumes of hydrogen, right? Now 2 volumes and 1 volume according to Gay-Lussac's law, 3 volume। अब equal quantity of volume में equal number of molecules होंगे। Suppose 1 volume में there are n number of molecules, तो 3 volume में there will be 3n number of molecules and 2 volume में there would be 2n number of molecules, correct? अगर 2 molecules में 2 number of molecules में suppose इसकी एटॉमिसिटी 2 है, ठीक है, तो 1 मॉलिक्यूल में यानी n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, सपोज n इज 1, आई टेक इट टू बी 1, सो दिस विल बी 3 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड इट विल बी 2 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। सो 2 मॉलिक्यूल्स में हियर वी आर गेटिंग 1 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन। 1 मॉलिक्यूल में 1 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन में इसका एटॉमिसिटी कितनी है? 2। नंबर ऑफ एटम्स कितने हुए? 2 एटम्स, करेक्ट। 3 वॉल्यूम्स में हाइड्रोजन में कितने नंबर ऑफ एटम्स हुए? 1 हाइड्रोजन में देर आर 1 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में देर आर 2 एटम्स, तो 3 हाइड्रोजन एटम्स में देर आर 6 हाइड्रोजन एटम्स, ठीक है। यानी 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया गैस, जिसका हमें प्रेडिक्शन करना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या डिटरमाइन करना है। जब मैं 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ दिस गैस लेती हूँ तो आई गेट 2 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन and 6 atoms of hydrogen, करेक्ट। अब अगर इसका मैं 1 एटम ले लूँ, इसको मैं हाफ कर दूँ, सारे रेशियोज को मैं हाफ कर दूँ, इन सेंस मैं अगर 1 आई राइट हियर, सपोज मैं 1 मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल्स थे ना, अगर मैं इसका हाफ करती हूँ, 1 मॉलिक्यूल लेती हूँ, तो ये भी हाफ हो जाएगा। आई विल गेट हाउ मेनी एटम्स? 1 एटम, करेक्ट। एंड हाउ मेनी एटम्स ऑफ hydrogen will I get? 3 atoms of hydrogen I'll get, clear? So what is the formula? 1 atom of nitrogen, right, and 3 atoms of hydrogen, ठीक है। ये 1 atom of nitrogen and 3 atoms of hydrogen make 1 molecule of ammonia. So this way Avogadro's law determined the molecular formula. So that's all for today. Hope to see you in my next video also. For that we need to stay connected, and for that you need to subscribe to the channel. Till then, stay safe, take care, and bye bye.